my college admissions, and after nowadays I'm taking English spoken classes. Okay, that's great, Parsi, that you have just passed out your 10 plus 2 and so crazy about the makeup and all. And today we'll be asking some questions related to makeup. So first, I would like to ask this question: how you got the inspiration about this makeup? I I just got this inspiration from my sister, as she is doing a very good makeup. She is my elder sister, and I ask her steps from her and start doing practicing and all. I like makeup too much by childhood. Okay, Parsi, as you mentioned that you came to know from your sister. So tell something about your sister first of all. My sister is nowadays she is doing job in AIMS, as we all know AIMS in Delhi. She is in trauma center, and she engaged, and after some 1 or 2 months she get married, and she shift in Canada. Okay, she'll be shifting to Canada and now she's in All India Institute of Management in Delhi, right? Yes, Okay. sir. So, Parsi, have you learned the makeup by yourself or by your sister more? Like you mentioned that you learn from your sister, but you learn from your sister more or by yourself? From sir, I learn more makeup by myself using internet. Okay, through internet you have learned, right? Yes, sir. So, in which class you started using internet? I started using internet in 10th standard. 10th standard. Okay, but you belong to a village. Then how you got a facility of internet? I belong to a village, but when I'm in 9th standard, then we shifted in Rohtak, and then I got facility of internet. Okay, okay, that's great. So I have been asking lots of questions from you, right? And I'll be asking more also from you. So tell me, what are the basic steps of makeup? While doing makeup, firstly we have to clean our skin, and after that use a moisturizer. And then if you're doing a makeup for whole day, then you have to use a sunscreen because it protects our skin from sun rays. After that, primer and foundation, then concealer goes on, and then blush plus bronze. After that, we have to use highlighter to highlight our beautiful part of our face, so that the part of our face which don't look good and which have acne problem, we can cover that part. पारसी जी, हम एक काम करते हैं, हम आपसे क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूछ लेते हैं, आंसर कोशिश कीजिए हिंदी में देने की, कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको प्रॉपर हिंदी में समझ में आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मतलब फॉलोअर्स हैं जो फीमेल्स हैं, वो ज्यादातर गांव से बिलोंग करती हैं और उनको इंग्लिश इतना हाई फाई समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी में बताइए आप इसके बारे में थोड़ा। जैसे हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से धोना होता है, साबुन और या फिर हम फेस वॉश यूज जो करते हैं उससे। उसके बाद फिर अच्छे से उसे ड्राई करके हम टोनर अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारे फेस के पोर्स ओपन है उनमें से जो भी डस्ट एंड ऑल है वो निकल जाए, ताकि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे हमारी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। देन प्राइमर हम यूज करते हैं ताकि हमारा मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहे फेस पे। उसके बाद फिर हम यूज करेंगे फाउंडेशन। अब अगर हम डेली रूटीन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। फाउंडेशन, फिर कंसीलर, जो हमारे लाइक डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स है वहाँ हम कंसीलर यूज करेंगे। उसके बाद फिर ब्रोन्ज, हमारे पार्ट्स को हाईलाइट एंड करने के लिए। फिर ब्लश on our cheeks and on nose. After that we use highlighter to highlight our parts like on cheekbones and nose bone. बहुत बढ़िया पार्षद जी, आप इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आप। सो टेल मी अबाउट दिस, हाउ टू प्रिपेयर योर स्किन फॉर ऑल द डे मेकअप। आप पूरे दिन के लिए जो मेकअप के लिए अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में बताइए प्लीज। हमें अपनी स्किन पूरे दिन के मेकअप के लिए प्रिपेयर करनी है तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्लींजिंग से। पहले हम अपने चेहरे को अच्छे से क्लींस कर लेंगे और ड्राई करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया, हम टोनर अप्लाई करेंगे ताकि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम और एक्ने प्रॉब्लम से हम बच सके। आफ्टर दैट हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे।
अच्छे से हाइड्रेटिंग सीरम लेंगे और उसे डैप टैप करके अपने फेस पे यूज करेंगे, ताकि हमारा फेस अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और जो हमारे फाउंडेशन एंड कंसीलर या जो भी हमारा मेकअप प्रोडक्ट है उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो आफ्टर दैट हम यूज करेंगे। पारसी जी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, मुझे बताइए कि हमारे जो श्रोता है उनको प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो आप कौन से प्रोडक्ट उनको रेकमेंड करेंगे? ओके, मैं उन्हें प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी, मॉइस्चराइजर लोटस सीरम प्लस वाइटनिंग मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। एज मैं ये यूज करती हूँ तो हमारी स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी रहती है इससे। उसके बाद फिर प्राइमर, प्राइमर में इनसाइट का आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, बिकॉज इनसाइट का जो प्राइमर है वो हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है, जिससे हमारे जो मेकअप हम फाउंडेशन वगैरह यूज करेंगे उससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगी। तो उसके बाद पारसी हमारी जी, पारसी जी, आपने लोटस के बारे में बताया, तो इतने महंगे प्रोडक्ट हमारे जो श्रोता हैं वो तो नहीं खरीद पाएंगे, बहुत कॉस्टली होंगे, तो आप कौन से उनको रेकमेंड करना चाहेंगे? तो मैं रिकमेंड करूंगी पॉन्ड्स का। ये बहुत ही एवरीवन कैन बाय इट, अफोर्ड इट, बिकॉज ये यही अंडर 100 आता है ये मॉइस्चराइजर जो है। और पहले तो आई थिंक पहले जो हम देखते थे हमारे गांव के अंदर, जो हमारी बहनें होती थी, हमारी भाभियां होती थी, माताएं होती थी, वो गांव में बेसन लेती थी, उसके अंदर दूध या कुछ मलाई मिला लेती थी और कहते इससे बढ़िया तो कोई मेकअप किट किट हो ही नहीं सकती। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो हम यूज करते हैं, लेकिन वो हमारा फेस पैक है। जैसे हम हफ्ते में एक बार फेस पैक यूज करना होता है हमें, ताकि हमारे फेस की जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या जो भी सनरेज की वजह से जो डार्कनेस आई है वो हम रिमूव कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा एक फेस पैक है। मतलब जो पॉन्ड्स को नहीं खरीद सकते वो लोग अपना घर पे देसी जुगाड़ बना के और अपना फेस पैक बना सकते हैं। नहीं नहीं, ये पॉन्ड्स, ये मॉइस्चराइजर अलग है और फेस पैक अलग है। तो जैसे फेस पैक मॉइस्चराइजर के हम बारे में हफ्ते बताइए पहले, कि मॉइस्चराइजर वो लोग घर पे कैसे तैयार करें? घर पे मॉइस्चराइजर अगर हमें यूज करना है तो हम, जैसे हमारे घर में लेडीज पहले लेती थी, थोड़ा सा घी ले लेती थी या मक्खन वगैरह यूज वो लोग करते थे, तो वो हमारे लिए मॉइस्चराइजर है, जिससे हमारी स्किन को मॉइस्ट मिले, ड्राई स्किन ना हो। जी। अच्छा पाशा जी, मुझे बताइए, किसी के पास सिर्फ 5 या 10 मिनट है और उसने जल्दी से मेकअप करना है पूरे दिन के लिए, तो वो क्या करे? अगर हमारे पास सिर्फ 5 या 10 मिनट में हमें मेकअप करना है तो हम सबसे पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे, ताकि हमारी स्किन बची रहे सन की रेज से। उसके बाद फिर हम फटाफट प्राइमर यूज करेंगे। मॉइस्चराइजर को यहाँ हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एज हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो वो मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। तो प्राइमर, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे कंसीलर अंडर आईज एंड ऑन डार्क स्पॉट, देन फाउंडेशन एंड देन ब्लश एंड देन हाइलाइटर। जी। यहाँ हमें ब्रोंज की इतनी जरूरत नहीं है। तो क्या हम एंड फाउंडेशन से पहले हम जो मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, मॉइस्चराइजर जो है वो नॉर्मली फाउंडेशन से पहले ही यूज होता है। एज बिकॉज हमें अपनी स्किन को मेकअप प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट से बचाना है, तो हम मॉइस्चराइजर को पहले ही अप्लाई करते हैं, ताकि हम स्किन को मॉइस्चराइज कर सके। अगर हम इसे फाउंडेशन के बाद यूज करेंगे तो ये हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा। तो मेकअप का जो पैक है वो कब अप्लाई करना चाहिए? मेकअप पैक, जी। विच वन सर? मेकअप पैक जो आप ओके, यूज करते हैं वो कब अप्लाई करना चाहिए? फाउंडेशन से पहले, मॉइस्चराइजर से पहले, या उसके बाद करना चाहिए? एज मेकअप पैक तो मेकअप जो हम करते हैं वो, जैसे हमें पहले हम प्राइमर देन मॉइस्चराइजर देन प्राइमर, उसके बाद हम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्राइमर जो है वो हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स को होल डे के लिए हमारे फेस पे, लाइक बहुत से लोगों की स्किन होती है जिससे कि उनकी स्किन पे मेकअप ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता, तो प्राइमर उन्हीं के लिए है, उन्हें उस टाइप की स्किन के कि अच्छे से मेकअप एक दिन के लिए ही रुक जाए। और इन ओके। सब में हमें अपने लिप्स को नहीं भूलना है, लिप्स को प्रेप करना जरूरी है। जी। तो मुझे ये बताइए पार्षद जी कि जो मेकअप के जो कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट, तो वो क्या स्टेप्स होते हैं? कैन यू डिस्क्राइब दैट? पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा यस स्टेप होता है, श्योर। फिर तीसरा स्टेप होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं?
एज अगर हम डेली रूटीन मेकअप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्लींजिंग रहेगा, ताकि जो भी हमारे डर्टी पार्टिकल्स एंड ऑल है हमारे फेस से वो निकल जाए। आफ्टर दैट टोनर, ताकि हमारे जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। फिर हम प्राइमर यूज करेंगे ताकि हमारी स्किन स्मूथ और अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। लाइक कुछ प्राइमर्स में मॉइस्चराइजर भी ऐड रहता है, तो उनमें हमें मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें अपनी स्किन फ्लॉलेस दिखानी है तो फिर हम प्राइमर यूज करेंगे। उसके बाद हम, बहुत सी लेडीज होती है जिनके कुछ ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, उनके लिए हम कलर करेक्टर यूज करते हैं ऑरेंज कलर का। देन हम यूज करेंगे कंसीलर, बिकॉज हमने करेक्टर यूज किया तो उससे हमें ढकने के लिए कंसीलर जरूर चाहिए। फिर हम फाउंडेशन यूज करेंगे। एज हमें अगर अपना मेकअप सेट करना है तो वो हम मेकअप सेट करने के लिए हमें अपने पाउडर्स यूज करने थे, लाइक ट्रांसपेरेंट पाउडर एंड ऑल। सो हम एंड जो भी लाइक कुछ गर्ल्स है आज के टाइम में जो लिक्विड ब्लश यूज करती है, तो उन्हें भी सेट करने के लिए पाउडरी ब्लश चाहिए होता है। तो पाउडर से हम अपना मेकअप सेट कर सकते हैं। जी पारसी जी। अच्छा पारसी जी, मुझे बताइए जेंट्स लोग अपना मेकअप कैसे करें? आपने सारा गर्ल्स के लिए तो बता दिया। यस यस, जेंट्स को मेकअप लाइक बहुत से जेंट्स होते हैं, लाइक फिल्म इंडस्ट्रीज एंड नॉर्मल डेज में भी जेंट्स मेकअप करते हैं। तो जेंट्स को भी कुछ स्टेप्स सेम रहेंगे, लाइक क्लींजिंग, टोनिंग एंड आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर, देन प्राइमर। फिर जेंट्स के लिए जो मेकअप आता है उसमें आते हैं, अगर किसी के ज्यादा डार्क सर्कल है तो वो अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए करेक्टर यूज कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली जेंट्स के मेकअप में सिर्फ फाउंडेशन यूज होता है और कॉम्पैक्ट। उस कॉम्पैक्ट, और अगर किसी का फेस ज्यादा भारी है और उसे हल्का दिखाना है तो उसमें हम थोड़ा ब्रोन्ज यूज करते हैं। एंड उसके भी हम गुड पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं, लाइक चीक बोन एंड नोज बोन। राइट। तो मुझे पारसी जी ये बताइए कि जो लाइट मेकअप है डेली रूटीन में जो करते हैं उसकी क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं और कैसे करना चाहिए? उसके बेसिक स्टेप्स होंगे एज यूजुअल। फर्स्ट प्रेप, तो हमें अपनी स्किन को प्रेप करना होगा क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, प्राइमर से। उसके बाद फिर हम फाउंडेशन यूज करेंगे। फाउंडेशन हम नॉर्मल बेस वाला बहुत लाइट प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमें एज हम डेली रूटीन मेकअप कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा यूज नहीं करेंगे, कम प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन उसे ब्लेंड अच्छे से करेंगे ताकि हमारी स्किन फ्लोलेस दिखे। देन हम हल्का सा ब्लश एंड लिपस्टिक और फिर हाइलाइटर यूज करेंगे। ओके। और ये जो लोग वेडिंग में जाते हैं, फंक्शंस वगैरह के लिए तैयार होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे और प्रोडक्ट्स कौन से उनको यूज करने चाहिए? या मान लीजिए किसी लड़की की शादी है या लड़की की शादी है, तो ये लोग मेकअप करवाने के लिए पार्लर में जाते हैं, कई कई घंटे लगाते हैं और बहुत सारा पैसा वहां पर वो लोग पे करके आते हैं। राइट। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि हमें पता है आजकल जो मेकअप प्रोडक्ट यूज होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं और उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लड़कियां या जो लड़के मेकअप करवाने जाते हैं और वो हाई पे करते हैं, तो वो उन्हें करना होता है क्योंकि उनके जो मेकअप प्रोडक्ट्स उन पे यूज हुए हैं वो हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस के यूज होते हैं। तो उन्हें प्राइस तो पे करना होता है। और जैसा कि हमें पता है कि डेली रूटीन और वेडिंग मेकअप में बहुत डिफरेंस है। एज वेडिंग मेकअप में हमें लगभग 2.5-3 घंटे तो मेकअप में लगते हैं। उसके बाद फिर जो हेयर स्टाइल एंड ऑल रहता है लड़कियों का, तो उसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि हमें मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर हमें उसे अच्छे से दिखाना है तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का, जिसके साथ हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो एज पारसी जी मुझे ये अगर हम बताइए, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, और कि सिर्फ वेडिंग वाले दिन ही मेकअप करवाना चाहिए या उससे पहले भी मेकअप करवाना चाहिए? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे कुछ लड़कियों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है तो वो तो अपना मेकअप करती ही हैं, लेकिन वेडिंग वाले दिन कुछ लड़कियां मेकअप इसलिए करवाना करवाना चाहती हैं क्योंकि एज दे आर द ब्राइड एंड वो अपना पूरा अटेंशन पाने के लिए सुंदर सबको दिखना होता है, तो इसीलिए मेकअप करवाती है। और मेरे हिसाब से मेकअप करना डेली के लिए मेकअप करना चाहिए, क्योंकि हमारा सुंदर दिखना सभी का हक है और सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। तो मेकअप हमारी स्किन को के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी अनइवन स्किन को इवन टोन देता है मेकअप। तो पारसी जी मुझे आप ये बताइए कि कुछ डूज एंड डोंट्स जिस पे ध्यान देना चाहिए।
मेकअप करते हुए? यस, हाँ जी। जैसे कुछ होते हैं कि मेकअप में जो प्रोडक्ट, जैसे हम फाउंडेशन यूज करते हैं तो कईयों को गोरा दिखना होता है, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गोरा दिखना होता है, तो वो फाउंडेशन लाइट कलर का यूज करते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भद्दा दिखता है। हमें हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का लेना चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारे स्किन टोन के हिसाब से, ताकि मेकअप ये नहीं होता कि हम, अगर हमारे डार्क स्किन है तो हमें लाइट स्किन दे। मेकअप का मतलब होता है हमारी अनइवन स्किन को इवन टोन देने के लिए। तो उसमें हमें अपनी स्किन टोन के हिसाब से हमेशा मेकअप चूज करना चाहिए। एंड कुछ होते हैं जो सिर्फ, जैसे जैसे कि मेकअप प्रोडक्ट्स जो है फ्लिपकार्ट एंड ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग से हमें मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। अगर हमें मेकअप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाने हैं तो स्पेशल एप्स हैं जैसे नायका एंड पर्पल ऑल, दीज आर स्पेशली फॉर मेकअप। यहाँ जो क्वालिटी मेकअप की मिलती है वो बहुत अच्छी और बिल्कुल सही क्वालिटी होती है। यहाँ फेक क्वालिटी मेकअप नहीं मिलता है, तो हमें क्वालिटी भी बहुत ध्यान में रखनी चाहिए हमारी स्किन को बचाने के तो लिए। पार्शी जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ज्यादातर मैंने देखा है लड़कियां जो मेकअप के लिए ब्रश यूज करती हैं, एक उनको ब्रशेस का आइडिया नहीं होता कि कौन सी ब्रश यूज करनी चाहिए। और जो मैंने देखा है रूटीन में भी जो मेकअप करती हैं वो अपनी ब्रश को वॉश करके नहीं रखती हैं और डायरेक्ट फिर वो अपने फेस पे अप्लाई करती हैं उसी ब्रश को। तो क्या ये सही है, या मैं कुछ इसमें करेक्शन में आपसे जानना चाह रहा हूँ? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी मेकअप के ब्रशेस को वॉश करके नहीं रखेंगे तो उनमें ऑलरेडी प्रोडक्ट रहेगा जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स होके हमें वो इफेक्ट नहीं देगा। अगर हम बात करें आई शेडो ब्रश की, तो बहुत सारे कलर की आई शेडो होती है। अगर हमने पहले ब्लैक कलर आई शेडो यूज किया ना, आफ्टर दैट हम रेड कलर यूज करना चाहते हैं, तो वो दोनों मिक्स होके मरून कलर की आई शेडो देती है हमें। तो हमारा जो रेड है वो अच्छे से नहीं आ पाता है। और अगर हम ब्लेंडर की बात करें तो ब्लेंडर से हम फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद हमेशा उसे वॉश करके रखना चाहिए, ताकि हम जो नेक्स्ट टाइम ब्लेंड करें फाउंडेशन को वो अच्छे से ब्लेंड हो, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर में जा सके। अगर पहले से ही ब्लेंडर में प्रोडक्ट होगा तो हमारा फेस का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्लेंडर में नहीं जा पाएगा। तो हमेशा ब्रशेस को वॉश करके रखना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच पार्शी जी। आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं? मेकअप, मेरे तरफ से लास्ट मैसेज यही है कि अगर हम अपना मेकअप यूज करते हैं तो हमें क्वालिटी देखनी चाहिए। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है इतना जितना क्वालिटी से पड़ता है। और हमेशा मेकअप करते समय बीच में हर प्रोडक्ट यूज करते समय 1 मिनट का गैप जरूर देना चाहिए, ताकि हमारा जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। तो प्रोडक्ट का एब्जॉर्ब होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। That's पार्षद जी, all. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है हमारे श्रोताओं के साथ। और ये इंफॉर्मेशन जो है श्रोताएं सुनेंगे और आपको कमेंट के रूप में वो रिप्लाई भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर बार बार हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते रहें और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट जरूर। इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। सो पार्षद जी, हम आपको ये बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप देखिए, अभी +2 आपने पास आउट की है और आप इतनी वास्ट नॉलेज रखते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जैसे इमेज इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं जो मेकअप्स के बारे में लोगों को टीच करते हैं। तो हम आपसे मतलब यही उम्मीद करेंगे कि आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बने, आप अच्छे ट्रेनर बने आप अपने फील्ड के अंदर। और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। Thank you, sir, for थैंक यू, giving me this opportunity. थैंक यू सो मच पासी, थैंक यू।